Hello everyone, welcome to VRC with Gaurav. In our video solution series Road to XLRI, in today's video we are going to pick up XAT 2022 second RC passage. First RC passage has already been done and uploaded in the playlist with the same name as Road to XLRI. Other previous year questions which I deem to be fairly important, which are deemed to be of very good quality, they have also been uploaded in the playlist. Please make sure that you go through all those if you haven't yet. ठीक है, चलो without any further delay, let's see what this passage is about and what the questions are. As usual, I recommend that you pause the video here, go through the RC passage. Also use the timestamps that I have put in the description box to go to the respective questions. Try to have a timer running in parallel. It's always a good idea to keep on checking to keep a track of your times with respect to RC passage, and then come back to this point in the video solution to check whether your comprehension was on the mark and whether your attempts have been correct or not. Alright, so without any delay, let's dive in. One important thing that I want to tell you, if you read the passage properly, you'll see that the author is doing a lot of back and forth between explaining what a liar does or what he does not do, and conversely what a bullshitter does and what he does not do. Whoever the writer of the passage is, the author is, he seems to be somebody very focused on the clarity of concepts, okay? And coincidence बोलो या पता नहीं, maybe the mindset of the paper setter. ऐसा ही जो पैसेज 1 का वीडियो मैंने बनाया है, इट्स अबाउट delving into the deep meaning, the genuine meaning of stupidity according to the author. He is making a very fine distinction between stupidity क्या होती है और बेवकूफ़ी क्या होती है, वो अलग होता है. And in this passage also we are delving quite deep into the fine technical differences between what is bullshitting and what is lying. Okay, तो अगर लाइन बाय लाइन सेंटेंस बाय सेंटेंस हम देखने जाए तो वी विल गो मैड. ओके, आप पागल हो जाएंगे, आपसे पहले मैं पागल हो जाऊंगा. नो मैटर विच लैंग्वेज आई ट्रांसलेट इट इनटू, taking its a sentence and then translating it into English and Hindi would defeat the purpose of this video. So what I've done is I've put together an example which will help us understand what the author is trying to say with respect to the liar and with respect to the bullshitter. Also, another thing that I've done is that I've highlighted the sentences for ease of understanding. Yellow, deep yellow वाले जो भी sentences आपको screen पे अभी दिख रहे हैं, those are for the liar, and green sentences which you see highlighted, those are for the bullshitter. Okay, और यहाँ पर मैंने concise points भी लिख के रख दिया है in the blank space on the right कि liar के बारे में key points क्या बोले author ने, and same thing about bullshitter. इसको एक example के जरिए समझते हैं. ठीक है, पकड़ के चलो that these are two different guys, liar और bullshitter. 20-21 साल के बंदे होंगे, पकड़ के चलते हैं, और इनका कोई छोटा भाई है 5-6 साल का, एंड ही कम्स टू देम सेपरेटली, नॉट इंडिविजुअली, नॉट टुगेदर, सेपरेटली आता है उनके पास में. ऑन डे 1 लेट अस से ही गोज टू हिज लायर भैया और उसको एक सवाल पूछता है कि भैया प्लीज बताओ सन का कलर क्या है, आई एम कंफ्यूज्ड. कभी दिन में ये कलर दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है, कभी शाम में येलो दिखता है, या व्हाटएवर जो भी है. तो लायर के केस में क्या होगा, लायर नोज दिस फैक्ट. व्हाट इज द फैक्ट ओवर हियर? द फैक्ट इज कि भाई सन का कलर, सन इज व्हाइट इन कलर. ठीक है, तभी तो हमारे पास में जो व्हाइट सनलाइट हमें रिसीव होता है अर्थ के ऊपर में, इफ यू यूज अ प्रिज्म एंड ऑल, तो वो स्प्लिट होता है 7 कलर्स में एंड ऑल. ठीक है, तो द लायर गाय, ही इज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट. ओके, ही नोज द ट्रूथ, ही नोज द फैक्ट. ओके, लेकिन इसको तो झूठ बोलने की बीमारी है. तो ये बंदा क्या करेगा, तो ये बंदा अपने उस छोटे भाई को बोलेगा कि सन इज येलो. ओके, वो SON लिखने में आ गया वहां पे, प्लीज कंसिडर इट एज SUN. ओके, ही विल टेल द किड कि नहीं नहीं सन इज येलो. दिल ही दिल में ये जानता है कि नहीं यार सन तो व्हाइट है, बट फॉर सम रीजन ही इज लाइंग. ही डज नॉट वांट द वर्ल्ड टू नो कि भाई मैं मिस्टर लायर, आई नो दिस फैक्ट दैट द सन इज व्हाइट. नहीं, ये कोई भी कीमत पे अपनी जान भी चली जाए तो भी ये बात बाहर नहीं आने देगा कि भाई ही नोज दिस फैक्ट. ही विल फाइट टूथ एंड नेल टू कन्विंस द लिटिल किड कि बॉस सन इज येलो इन नेचर, येलो इन कलर. ठीक है, तो ये होती है हैबिट एक लायर की, ये होता है उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर, दैट ही नोज द ट्रूथ बट फॉर सम रीजन ही इज इंटेंशनली हाइडिंग इट, and he does not want you to be aware of, he does not want you to become intelligible about the fact that sun is white and that he also knows that this is white. I am reminded of वो वाला situation, फ्रेंड्स में वो है ना यार, शायद सीजन 5 में when they end up getting to know about
चैडलर एंड मोनिका का रिलेशनशिप, तो दे नो दैट वी नो दैट दे डोंट नो, कुछ तो वो वाला। तो थोड़ा ये ऐसा झंझट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन द लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज पॉसिबल, बट समवेयर द वर्ड प्ले इज सिंपली अनअवॉइडेबल. On the other hand, what happens with the bullshit guy? Let's say the next day the same kid goes to his bullshitter भैया and asks the same question कि भैया सन का कलर क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. So fun fact with bullshitter भैया is this, ये बोलेगा उस बच्चे को कि भाई देख सन का कलर इज ऑरेंज, सन इज ऑरेंज, ये बोल बैठेगा उसको. ठीक है, और क्यों ऐसा? डज ही नो? एब्सोल्युटली नॉट. इट इज वेरी लाइकली दैट द बुलशिटर गाय हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट दिस फैक्ट हिमसेल्फ. ऐसा भी हो सकता है कि द बुलशिटर गाय डजंट केयर व्हाट कलर द सन इज. उसके दिमाग में इट इज पॉसिबल कि शायद सन वायलेट भी हो सकता है या व्हाइट भी होगा या कोई भी कलर हो दुनिया में. फॉर सम रैंडम रीजन ही इज सेलिंग दिस फैक्ट टू द किड कि अरे बेटा सन इज ऑरेंज. ओके, and he might not even be aware of the truth. He is also not one bit concerned about the truth. ये मेहनत भी नहीं करेगा पता करने की, अरे हाँ यार सन का कलर क्या होता है, मे बी आई शुड फाइंड आउट. ना जी ना, ये बेच रहा है भाई, सन इज ऑरेंज बेचे जा रहा है. ओके, सो दिस इज द फाइन डिफरेंस बिटवीन लायर एंड बुलशिटर अकॉर्डिंग टू द ऑथर. लायर को लेकर एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस ऑथर ने यहाँ पे कहा है, मैं सेकंड पैरा के बॉटम में डबल निगेटिव वाला सेंटेंस है. इट इज इम्पॉसिबल फॉर समवन टू लाई अनलेस ही थिंक्स ही नोज द ट्रूथ. तो इसको मैं आसान भाषा में ट्रांसलेट करके बोलता हूं कि जब तक आपको सत्य पता नहीं, जब तक आपको ट्रुथ पता नहीं, आप झूठ बोल नहीं सकते. इफेक्टिवली क्या बोला जाता है, एनीबडी हु इज लाइंग, जो भी झूठ बोल रहा है, ही इज अवेयर ऑफ द ट्रुथ, ही इज अवेयर ऑफ रियलिटी. ये फंडा, ये रूल बुलशिटर के ऊपर अप्लाई नहीं होता. प्रोड्यूसिंग बुलशिट रिक्वायर्स नो सच कन्विक्शन. You can be completely unaware about some topic. You might not even be aware that what you are speaking is truth or not the truth, whatever. You are just hell bent on selling something to the world. ठीक है, तो ये कोर डिफरेंस है दोनों का. तो सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों में? यहां पर फर्स्ट पैरा के एंड में ऑथर हैज हाइलाइटेड, आई हैव अंडरलाइंड इट इन ब्लैक फॉर यू. इनके अंदर सिमिलैरिटी बस ये एक बात की है कि ये दोनों भी आपको जो ये खुद के सेंटेंसेस है ना, ये जब बेचेंगे तो बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे आपको बिलीव कराने में कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, दैट व्हाट आई एम सेइंग इज द ट्रुथ. बस फर्क ये है, ही नोज व्हाट द ट्रुथ इज, और दिल ही दिल में इसको पता है दैट आई एम लाइंग. इसको अगर आप लाई डिटेक्टर पहना दो तो ये पक्का पकड़ा जाएगा. बुलशिटर के केस में शायद लाई डिटेक्टर इसको पकड़ ना पाए, क्योंकि भाई को पता ही नहीं ट्रुथ क्या है. पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ही डजंट केयर अबाउट द ट्रुथ. ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट दिस फाइन डिफरेंस. एंड आखिरी ये जो पार्ट है उसके ऊपर में भी यही एम्फसाइज किया गया है कि जो इंसान झूठ बोलता है, दिल में वो रिस्पेक्ट करता है ट्रुथ का, एंड ही इज हाइडिंग दैट ट्रुथ, ही इज कंसीलिंग इट. एक ऑनेस्ट मैन ट्रुथ जानता है, ट्रुथ ही बोलता है. लायर ट्रुथ जानता है बट वो नहीं बोलता. लायर का और सॉरी बुलशिटर का भाई ना रहा बास ना बजेगी बांसुरी, जानते ही नहीं कुछ भी बोलेंगे, खत्म. अभी ऐसा भी हो सकता है that maybe this ends up becoming the truth. Okay, ऐसा भी हो सकता है that there is some other Mr. Bullshitter in the world, bullshitter नंबर 2, वो शायद बेच रहा है पूरी दुनिया को कि sun is white, sun is white, sun is white, even though maybe he is not even aware about this actual scientific fact. Okay, तो ये एक fine difference है. तो there is not a lot to take away from the passage, बस एक point of similarity between the two, that they both want to convince the world about their own opinions very strongly. Second, the difference part वाला is very important. तो मैंने अभी तक वो कई बार बोल चुका, already repeating it for the one last time, कि liar knows the truth but is intentionally hiding it. On the other hand, bullshitter doesn't care about the truth, is just selling something random to you. ठीक है, so I hope that you understood जो भी ये narrative है. और अब चलो जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर में. Okay, so coming to the first question, क्या पूछा गया है हमें यहाँ पे, which of the following can best be talked about, can best be inferred from the passage. और आप जब ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन के अंदर में हमें क्लियर कट दिख रहा है, ऑल द 5 ऑप्शन वांट टू टॉक अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन द लायर एंड द बुलशिटर. और इनकी सिमिलैरिटी की जो बात हमारे पास में की गई है वो तो केवल एक ही सेंटेंस है यहाँ पर, कि बोथ ऑफ देम वांट टू कन्विंस यू अबाउट देयर ओन स्टेटमेंट्स
खत्म, काम खत्म, बाकी डिफरेंसेस ही है पूरे पैसेज में. सो लेट्स इवैल्यूएट व्हाट द options are. Okay, option A, that both the liar and the bullshitter misrepresent the truth. No, not at all, not at all. ट्रुथ को मिसरिप्रेजेंट करने में, झूठ बोलने में कौन है बस कंसर्न? ओनली एंड ओनली द लायर. द बुलशिटर डजंट गिव अ डैम अबाउट द ट्रुथ. तो जिस चीज को वो वजन ही नहीं देता, जिस चीज को वो भाव ही नहीं देता, व्हाई वुड ही एंडेवर टू मिसरिप्रेजेंट इट? ही वुडंट. सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. आउट. बी, both the liar and the bullshitter intend to deceive in their own ways. Correct, very much on the point. First paragraph का last sentence which I have highlighted in black color, which I have underlined in black color, वही तो बोला है यहाँ पे कि the success of each depends upon deceiving us about that. खुद के एजेंडा के बारे में आपको चिपकाना है, एक को कन्विंस करना है that sun is yellow, other wants to convince you sun is orange for different reasons. But one thing is common, both want to make you बेवकूफ. ठीक है? So option B is actually the right answer over here. Other answer options क्यों नहीं होंगे? Both the liar and the bullshitter are guided by the truth. Absolutely not. Time and again the author has emphasized in the passage repeatedly, bullshitter doesn't give a damn about the truth. तो जिसके बारे में फर्क नहीं पड़ता तो guided भी नहीं होगा. The liar is guided by the truth in the sense that he knows it, chooses to suppress it. So of course not the answer. D. Both the liar and the bullshitter live in their own worlds of realities. Now this might seem like an answer to a lot of people, but keep in mind it's only the bullshitter who lives in his own world, not caring about reality. The liar is grounded in the actual factual reality of the world. He is just misrepresenting the reality to you, but he lives in हमारी ही दुनिया. So D is also not the answer because only one guy, the bullshitter, is living in his own world of fantasy. E. Both the liar and the bullshitter are not bound by any conviction. Okay, conviction से not bound. This is applicable only to the bullshitter. The liar is bound by the conviction कि हाँ यार sun is white, पर मैं कुछ तो रीजन के लिए मैं बेचूंगा इस बच्चे को that the sun is yellow. कोई तो कारण के लिए. ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट दिया है. प्लीज रीड दिस क्लोजिंग रिमार्क्स ओवर हियर. सेकेंड पैराग्राफ की जो क्लोजिंग लाइन्स है, that the producing bullshit requires no such conviction. ठीक है, so because of that reason option E also out. Okay, so I hope that you understood this question and also got the answer correct. Still if any doubts let me know in the comment section and I'll be more than glad to help you out. तब तक जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. Okay, which of the, sorry my bad, why does the author say that the bullshitter's intention is neither to report the truth नॉट टू कंसील इट? कि ऑथर ने ऐसा बोला क्यों है बुलशिटर के बारे में कि बुलशिटर भैया को कोई फर्क ही नहीं गिरता यार, उसको ट्रुथ ना बताना है और ना ही दबाना है. तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर क्लियर कट हमें दिया है. लेट मी मूव द लेजर पॉइंटर देयर. ठीक है, हिज एजेंडा इज जस्ट टू डिसीव अस. काम खत्म. ओके, इसका ये काम नहीं है कि भैया मैं सच दबाना चाहता हूँ या सच आपको बता देना चाहता हूँ. व्हाट ही सिंपली वांट्स टू डू इज बस खुद का कुछ तो रैंडम सा एजेंडा आपको बेचना है. तो ही इज नॉट कंसर्न अबाउट द ट्रुथ एट ऑल. यहां पर ये पॉइंट फिर से हम देखेंगे. द बुलशिटर हाइड्स दैट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ हिज स्टेटमेंट्स आर ऑफ नो सेंट्रल इंटरेस्ट टू हिम. ओके, और इसीलिए ऑथर इज सेइंग वी आर नॉट टू नो, वी आर नॉट टू अंडरस्टैंड दैट हिज इंटेंशन इज नाइदर टू रिपोर्ट द ट्रुथ नॉर टू कंसील इट. ठीक है, so this green highlighted statement is the key to cracking this question, that they are not concerned about the truth at all. Which option do we have over here reflecting that? I think it is option D. Yes, because bullshitters do not find the truth useful. Useful in the sense they are not concerned with it. क्या ही करना है, छोड़ो. Okay, वैसा वाला एटीट्यूड है बुलशिटर का. So option D reflects that. ABC बिल्कुल नहीं है. ई जैसे ऑप्शन को या बी जैसे ऑप्शन को आपने बहुत इजीली रिजेक्ट करते आना चाहिए आपको, बिकॉज द पैसेज हैज रिपीटेडली मेंशन्ड दैट. ओके, सो लेट्स गो एंड सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन नाउ. आई होप दैट यू गॉट दिस वन करेक्ट. इट वाज एक्चुअली प्रीटी बेसिक इन नेचर. Nonetheless, if you have any doubts, let me know in the comment section. Also, please hit the like, share and subscribe button if you haven't already. It goes a long way in encouraging humble creators like me. Okay. When will a liar best turn into a bullshitter? ठीक है, एक लायर को अगर आपको बुलशिटर बनाना है तो कब हो सकता है वो? तो जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का, दैट की डिफरेंस यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ. लायर
कैसे डिफरेंट है बुलशिटर से? ही इज डिफरेंट इन द सेंस कि ही केयर्स अबाउट द ट्रूथ. तो इफ यू वांट टू टर्न हिम इनटू अ बीएस गाय, कैसे बदलोगे? मेक हिम केयरलेस अबाउट द ट्रूथ, मेक हिम अनकंसर्न्ड अबाउट इट कंप्लीटली. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय लाइंग? झूठ बोला तब जाता है जब आप सच जानते हो, सच को दबा के सच के सिवा कुछ आप बोल रहे हो. भाई बोलना ही नहीं, सच से करना ही क्या है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी. तो उस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो एक लायर को एक बुलशिटर में. तो विच ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स दैट? दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑप्शन सी ओनली. When a liar focuses only on the outcome, very good word over here. I generally don't like the quantifier only, but यहाँ पे बहुत perfectly use किया गया है. Only on the outcome and not on telling lies. भाई झूठ वूठ क्यों ही बोलना है? झूठ कब बोलोगे आप? जब आप ट्रुथ ढूंढोगे, फिर चूज करोगे कि नहीं यार सच छोड़, सच नहीं बताता हूँ दुनिया को, कुछ दूसरा ही बकता हूँ. तो भाई ये झंझट में गिरो ही मत. मन में कुछ तो बना लो ओपिनियन और बस दिल खोल के वही बेचो दुनिया को. Focus only on the outcome, not on the truth, not on the lie. Case close. ठीक है. तो बाकी के ऑप्शन यू शुड बी एबल टू रिजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए अगर आपको थोड़ी दिक्कत देता है तो इट इज एक्चुअली हाफ बेक्ड. व्हेन अ लायर स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ, तो इफ ही स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ, व्हाट इफ ही कीप्स mum, what he keeps mouth shut, will he be a bullshitter? No. He will have to go on the other side, care about the outcome. What outcome? कि मैं जो तुमको बोल रहा हूं वो मान जाओ भाई, प्लीज प्लीज बी कन्विंस्ड, प्लीज एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेलिंग टू यू. दैट इज कॉल्ड एज बुलशिटिंग. ओके. तो ए इज लाइक हाफ बेक्ड, उसमें थोड़ा सा और एडिशन होता तो फिर वो एक आंसर बन सकता था. ओके. बी सी सॉरी बी डी एंड ई once again are nearly in the same category as option A in the sense that they are not giving you the पूरा picture. पूरा picture आप देख सकते हो सिर्फ option C में है because it is giving you both sides of the process. पहले focus only on the outcome and second don't focus on telling lie or telling the truth, getting to know the truth. तो पूरी जो एक process है only option C में cover होती है दोनों steps of the story. All the other option A, B, D and E, they are not covering the entire situation. For example, option D तो बहुत ही बकवास है. क्यों? When a liar lies to people about his intention, अरे if he is still lying, तो he is still a liar ना. हमें तो उसको bullshitter बनाना है. ठीक है. So because of that reason, option D gets kicked out. देखा वो option खुद के ही word play में कैसा फंस गया. Okay. So fine word play throughout the passage. That is why I did not walk you through each of the sentences one by one. पक्का पागल होने के काम थे. I hope that you understood what the passage is talking about through the analogy of that child asking sun ka color and all. If you haven't still, let me know in the comment section. I'll try to explain to you in some other words. But I sincerely hope that this was fairly good enough. Okay. If you like this video, please let me know in the comment section. Please press the like, share and subscribe buttons. And I'll see you in the next video. Tata, bye bye and take care.